Good morning, everyone. My name is Shivani Tyagi, your current affair teacher, and this is a beautiful morning to start with today's current affair. With this, I remember one important quote, and it says that those who cannot remember the past are condemned to repeat it. So, this powerful line was said by Jyot Santana, a great thinker. So, what does this mean? For especially for students who are preparing UPSC and any government examinations. So, in current affair also, what this means that it is like whatever is happening around us today, right? Politics, society, economy, environment. We will keep making the same mistakes tomorrow also if we'll not analyze, if we'll not understand that what exactly the problem is, right? And current affairs is not just news. We will keep them making the same mistakes tomorrow also. This is why we have to understand it, we have to analyze it, and then we have to implement it. So when you read current affairs, you are not just preparing for an exam, you are preparing to become an aware, responsible citizens. So before we begin today's class, there is one small but powerful task for you. You know what you have to do? You have to write one comment in the section and write down the task that you have did in the yesterday. Like studied for 30 minutes, revise notes, help someone to control your anger, or read the newspaper, or what you can do is write any task. So why are we are doing this? We are doing this because you did the work. You deserve to claim it. And when you claim it, you start feeling proud of yourself. So progress begins when you acknowledge your efforts, not just the result. So go ahead, write one task you completed yesterday and feel proud of it because your journey matters, your effort matters, and we have to recognize it. You and I, we have to recognize it. So with this beautiful thought, we are going to start with today's current affair. Good morning, Shantanu. Let's move towards our first current affair and make sure that pen and your notebook is in your hand because there are lots of definitions we'll be reading, there are lots of keywords we'll be learning, and there are lots of subjects that we'll be comparing these two. So make sure that you have pen and notebook. Let's move to our first current affair, which is with new bill demand led rural job schemes set to turn supply driven. This is the second news that came related to MGNREGA. So make sure that you are reading it properly as chances of coming in prelims of this news is very high. Okay. Now, imagine a small village where work is not available through the year. So when farming work ends, many villagers worry कि अब हम पैसे कमाएंगे कैसे? How will we feed our families? तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ? India started a law that started many years ago called MGNREGA. So this law guarantee 100 days of work, ठीक है? Every year to rural households. So it's like demand. People are demanding to the government कि हमें काम चाहिए ही चाहिए, right? So the government paid wages for work like digging ponds, like building roads, improving village infrastructure, right? इन चीजों के लिए आपको काम प्रोवाइड किया जाता है. Now the government feels that the rural India has like changed and MGNREGA also needs some updating. So the central government has decided to bring a new rural employment law in parliament. कुछ changes लेकर आने की यहाँ पर बात की गई है. इससे पहले 2 दिन पहले भी ये न्यूज में था. Why this was in news? So it was like debated कि इसका नाम चेंज होना चाहिए, right? So there was debate that happened with the present government and opposition, right? So इस चीज के लिए ये दूसरी न्यूज है हमारे पास. So make sure that you are reading it and writing all the keywords and understanding it properly. Now, जो ये नया लॉ हमारे पास आया है, this will replace MGNREGA. So it will like change how rural employment is like provided, and possibly it will like expand of restrictions the idea of job guarantee also. ठीक है? अब ये नया प्रपोजल जो है हमारे पास, ये बेसिकली डिफरेंट क्यों है, अलग क्यों है? तो इस प्रपोजल नए लॉ में क्या हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड नॉट ओनली इन द ट्रेडिशनल रूरल एरियाज बट ऑल्सो इन सर्टेन नोटिफाइड एरिया ऑल्सो दैट आर गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द सेंटर. सेंटर डिसाइड करेगी कि वो एरियाज कौन कौन से हमारे पास होने वाले हैं, राइट? Now the focus may shift from only manual labors to more productive and skill based labors. पहले हमारे पास सिर्फ छोटे कामों के लिए ही ये चीज की गई थी so that migration, that large migration can be stopped, ठीक है? और रूरल माइग्रेशन से जो यहाँ पे अर्बन की तरफ आ रहे हैं that could be stopped. But now they want some changes in it. So the aim is not just short term wages, इसलिए किया जा रहा है ताकि लॉन्ग टर्म रूरल डेवलपमेंट के बारे में भी इस चीज को देखा जाए, ठीक है? इसीलिए हमारे पास यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं. तो आसान शब्दों में समझे तो बेसिकली है क्या कि गवर्नमेंट वांट्स रूरल एम्प्लॉयमेंट टू बी मोर यूजफुल, थोड़ा और ज्यादा प्रोडक्टिव और फ्यूचर रेडी बनाने के लिए चेंजेस लेकर आए हैं इंस्टेड ऑफ ओनली बीइंग अ रिलीफ स्कीम, ठीक है? 100 दिन का काम दिया जा रहा था ताकि रिलीफ स्कीम मिले कि अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो थोड़े टाइम के लिए ये काम कर लो, राइट? बट नाउ दे वांट मोर. उनको इस चीज के लिए लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, राइट? दिस इज व्हाई गवर्नमेंट इज पुटिंग सम चेंजेस इनटू इट. नाउ however there is like some changes. This move is also important because MGNREGA is right based law. Now people can demand work
हक है उनका, राइट? तो कोई भी रिप्लेसमेंट हो, ठीक है, दिस इंश्योर्स दैट पुअर डू नॉट लूज देयर सेफ्टी नेट, राइट? दिस इज व्हाई मनरेगा इज, इसीलिए न्यूज जो है बहुत क्लोजली देखी जा रही है बाय इकोनॉमिस्ट, बाय एक्टिविस्ट और बाय पॉलिसी मेकर्स ऑल्सो। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए, व्हाई? बिकॉज दिस इज कनेक्टिंग सो मेनी पेपर्स टुगेदर। इसीलिए जानते हैं कि कौन से पेपर्स को कनेक्ट करती है ये? Okay, now this is connecting paper 2, right? GS2, that is government policies and interventions, ठीक है, जहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस के बारे में बात करते हैं, पार्लियामेंट और लॉ मेकिंग के बारे में बात करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर GS3, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में बात करी जाती है, रूरल डेवलपमेंट और हमारी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे ऐसे पेपर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एज अ लाइक अ टूल ऑफ सोशल जस्टिस, वी आर अंडरस्टैंडिंग वेलफेयर वर्सेज डेवलपमेंट डिबेट्स, वी आर अंडरस्टैंडिंग रोल ऑफ द स्टेट, ठीक है, जॉब क्रिएशन में स्टेट का रोल क्या है, सेंटर का रोल क्या है, राइट? देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इनको लिंक कैसे किया जाता है, वो भी हम समझेंगे इस न्यूज के थ्रू। नाउ ये जो नया रूरल एम्प्लॉयमेंट बिल आया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात करता है कि the changes that is happening, it is like one of the India's biggest welfare schemes, मनरेगा, राइट? अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप कुछ भी पढ़ते हैं, राइट, मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री, नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, एंड व्हाई दिस इज लाइक ब्रॉट टू अस, अभी न्यूज में क्या है, राइट? सो मेक श्योर जो भी आप न्यूज पढ़ रहे हैं यू आर अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री फर्स्ट, और उसके बाद आप जानिए कि अभी न्यूज में क्यों आ रहा है। So when we talk about मनरेगा, it's Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, right? It's a law, act of parliament, a right based scheme, ठीक है, जहां पे लोग डिमांड करते हैं that I want some work। अब गारंटी क्या करता है? 100 days of wage employment every year, हर रूरल हाउस होल्ड में अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर में मिनिमम वेजेस पे आपको काम दिया जाएगा। So if like work is not provided, the worker has like a legal right to unemployment allowances also. So this is why this मनरेगा is called legal guarantee, not charity, ठीक है? This is like the demand that people ask to the government. So सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्लान करा है कि ये नया रूरल एम्प्लॉयमेंट जो बिल है उसको पास किया गया है पार्लियामेंट में। तो इस नए बिल में दिस विल लाइक रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मनरेगा लॉ। सो वंस पास्ड, मनरेगा इन इट्स न्यू करंट फॉर्म में एंड, राइट? सो दिस इज अ मेजर पॉलिसी शिफ्ट, नॉट अ स्मॉल रिफॉर्म। कोई छोटा रिफॉर्म नहीं हो रहा, बल्कि बहुत मेजर शिफ्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी इतना बड़ा चेंज आया क्यों है? तो मनरेगा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट स्कीम इन द वर्ल्ड, ये हम समझ चुके हैं, एंड दिस इज लाइक द सेफ्टी नेट फॉर द रूरल पुअर, राइट? स्पेशली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ड्राउट्स, पेंडेमिक्स, या फिर इकोनॉमिक कोई स्लो डाउन हो जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, ठीक है, उसके बाद में ये बहुत ज्यादा देखने को मिला था, राइट? नाउ सॉरी, नाउ इट इज वेरी डिफरेंट प्रपोजल। ये जो हमारे पहले प्रपोजल था उससे ज्यादा बहुत अलग है ये, क्योंकि वर्क इज स्ट्रिक्टली फॉर द रूरल एरियाज, ठीक है, पहले जो था। नया बिल में जो हम देखने को मिलेगा वो है एम्प्लॉयमेंट में बी प्रोवाइडेड इन एरियाज नोटिफाइड बाय द सेंटर। सेंटर कुछ एरियाज अलॉट करेंगे और वहां पे कुछ कुछ काम है जो अलॉट किए जाएंगे। इसका मतलब ये है दैट सेंटर डिसाइड्स वेयर एम्प्लॉयमेंट विल बी अवेलेबल, एंड इट मे इंक्लूड सेमी अर्बन या फिर स्पेशल जोन्स, एंड इट मे इंक्लूड सम विलेजेस आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि सेंटर बेसिकली ठीक कर भी रही है, नहीं कर रही है, राइट? एंड व्हाट काइंड ऑफ रोल्स स्टेट एंड सेंटर विल प्ले टुगेदर टू इफेक्ट दिस। नाउ आई होप इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब सबसे पहला तो होगा एम्प्लॉयमेंट एरियाज, ठीक है, पहला तो चेंज ये होगा। दूसरा चेंज जो हमारे पास होगा दैट विल बी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो मनरेगा फोकसेस ऑन डिगिंग पॉन्ड्स, रोड्स, वाटर कंजर्वेशन, बेसिक रूरल एसेट्स जो होते हैं उन पर फोकस करता है, राइट? अब नया बिल का एम ये है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट होगी दैट शुड बी लाइक मोर प्रोडक्टिव, ठीक है, लिंक करेंगे डेवलपमेंट गोल से, एंड वी विल लाइक पॉसिबली फोकस ऑन स्किल बेस्ड एसेट्स आल्सो, ताकि जो प्रोजेक्ट्स है वो क्रिएट किए जाए। तो गवर्नमेंट को लगता है कि मनरेगा वर्क इज समटाइम्स लाइक लो प्रोडक्टिविटी। अभी जो हमारे पास चल रही है चीजें दैट इज लाइक ओनली फॉर दोज रूरल पीपल, छोटे छोटे कामों के लिए बनाए गए हैं, बट नाउ दे वांट इट टू बी मोर प्रोडक्टिव, क्योंकि हमारी डेवलपमेंट उस हिसाब से हो रही है, राइट? एंड दे वांट टू मेक रूरल मोर डेवलप्ड, ठीक है, थोड़ी प्रोडक्शन वहां पे ज्यादा करना चाहते हैं। फॉर दिस दे आर पुटिंग दीज न्यू एफर्ट्स। नाउ चेंज नंबर 2 हमें समझ में आ गया कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। चेंज नंबर 3 की बात करें तो दिस इज लाइक राइट्स वर्सेस प्रोग्राम्स। तो मनरेगा की बात करते हैं तो दिस इज लाइक लीगल राइट टू वर्क, ठीक है। नया बिल की बात करेंगे तो इट विल लाइक बिकेम प्रोग्राम बेस्ड, नॉट राइट बेस्ड। सो दिस इज द लाइक द बिगेस्ट कंसर्न आल्सो, ठीक है। इतनी कहानी आपको आई होप समझ में आ रही है। अब गवर्नमेंट ये चीज कर क्यों रही है? व्हाई गवर्नमेंट इज डूइंग दिस? द गवर्नमेंट इज लाइक स्टेटेड थिंकिंग कि मनरेगा जो है इट इज लाइक द परमानेंट इंस्टेड ऑफ मेकिंग टेम्पररी। इसको परमानेंट बनाओ। इट इज सीन एज लाइक द डिस्ट्रेस एम्प्लॉयमेंट स्कीम।
सो बेसिकली यहाँ पे हम बात करते हैं लीकेजेस की, डिलेड वेजेस की, रिपीटेड सेम वर्क्स की, राइट। ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, राइट। अब गवर्नमेंट चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट लिंक टू द डेवलपमेंट, ठीक है, बेस्ट बेटर एसेट क्रिएशन हो यहाँ पर, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव जो है यूज हो पब्लिक मनी का, ठीक है, इसीलिए ये शिफ्ट देखने को मिला है। अब मेजर कंसर्न क्या है? सबसे पहला कंसर्न हमारे पास जो है वो है जॉब सिक्योरिटी। तो अंडर मनरेगा पुअर हाउसहोल्ड्स हैव लाइक अ लीगल गारंटी। अगर इसको रिप्लेस कर दिया जाता है तो वर्कर्स में लूज गारंटी 100 days and it like totally depend on government discretion also. So this weakens what? This weakens social security. उनके पास कहीं ना कहीं ये डिमांड करने ये हक था, राइट, दिस वाज देयर राइट कि हमें ये काम चाहिए ही चाहिए, राइट। तो जॉब सिक्योरिटी का कंसर्न हमारे पास सबसे पहला होगा। दूसरा कंसर्न हमारे पास होगा सेंटर का कंट्रोल, राइट। अगर एरियाज विल बी नोटिफाइड बाय द सेंटर तो स्टेट decentralization spirit will be loose. Now third concern, तीसरा concern हमारा होगा impact on rural poor, ठीक है। Now MGNREGA supports landless laborers, women, ठीक है, यहाँ पे जो था फीमेल का हाई पार्टिसिपेशन देखने को मिला था, राइट, SC और ST households, राइट। So this basically puts question on that, राइट। देन थर्ड कंसर्न, तीसरा कंसर्न हमारा होगा, जो तीसरा कंसर्न है वो रहा इम्पैक्ट ऑन रूरल पावर, राइट। तो बेसिकली जितनी सारी चीजें हैं जो हमारे बेनिफिट के लिए बनाई गई थी, राइट, दैट विल बी इन डिस्ट्रेस। I hope screen is visible now to everyone. Okay. So I hope पूरी न्यूज आपको क्लियर हो गई है। आई एम अगेन टेलिंग यू कि ये दूसरी बार न्यूज में है, सो मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग इट प्रॉपरली, ठीक है। क्या क्या कंटेक्स्ट है, इसकी हिस्ट्री आप जान लें, ठीक है। और अभी बार बार न्यूज में क्यों आ रहा है। So from this we understood that it is like the safety net during pandemic economic distress, right? And why it is in the news? क्योंकि कुछ कुछ चेंजेस हैं जो गवर्नमेंट लेकर आना चाहती है। दे आर प्लानिंग टू न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट बिल, ठीक है। इस बिल को बेसिकली रिप्लेस करना चाह रहे हैं। वो क्यों चाह रहे हैं? एम ये है ताकि रिलीफ बेस्ड वर्क हो, ठीक है, और वो बेसिकली मूव करे प्रोडक्टिव और डेवलपमेंट की तरफ, ठीक है। अब वो बेसिकली इस चीज को एक स्टेप फर्दर लेकर जाना चाहते हैं टुवर्ड्स द डेवलपमेंट, राइट। नाउ दिस गवर्नमेंट वांट्स सम चेंजेस इन दिस बिकॉज परमानेंट डिस्ट्रेस स्क्रीम हो जाएगा, ठीक है, और लो प्रोडक्टिविटी इन सम वर्क्स एंड इश्यूज ऑफ डिलेज एंड लीकेजेस। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम दिस न्यू बिल हैज बीन पास्ड, राइट। नाउ moving towards another thing, that it is like proposed changes areas of employment, and this MGNREGA is only rural areas where people demand their work, demand their rights, right। हक है ये उनका काम लेना, right, from the government। So now from manual labors to productive and single workers, this is why this has been like changed, right। Now legal guarantee act नए बिल में क्या होगा हमारे पास, may not guarantee work as right, and major concerns हमने पढ़े हैं, तीन major concerns हमने पढ़े हैं। I hope those concerns are included to you। Now moving to the next news। Next news is Shanti Bill spurs private sector to make run nuclear plants. Another important news which can come in prelims for sure. And I hope that you are writing each and every keyword that I'm dictating to you. Now, अब imagine करो कि India's energy system is like a huge power machine, ठीक है, and that must like run like 24 hours a day to keep homes, hospitals, factories, school, basically data centers working, right? Now, to power this machine, India uses बहुत सारे sources. कैसे कैसे sources use करती है? जैसे coal हो गया, hydro हो गया, solar हो गया, wind हो गया, right? And like nuclear energy, right? Which is very clean, reliable है, continuous भी है, right? And it is not dependent on sunlight या फिर wind. But until now what happened that India's nuclear power plants were almost entirely run by the government, ठीक है, सब कुछ गवर्नमेंट देख रही थी, राइट। nobody else could like build or operate them because of the strict rules that were like made long time ago। बहुत सारे रीजंस भी है उसके, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, राइट, और बेसिकली बहुत सारी पॉलिसीज है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट के अलावा किसी और ने इंटरवेन किया ही नहीं, चीज पे किया नहीं या फिर करने नहीं दिया गया, राइट। नाउ imagine another thing that government finally says कि तुम एक काम करो, we want more nuclear power faster and to meet rising energy needs and climate goals, but building and running nuclear plant is expensive and complex, so we need private companies to help, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, प्राइवेट कंपनीज का यहाँ पे रोल मिलेगा हमें देखने को, राइट। अब टू डू दिस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लॉ इन पार्लियामेंट दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड advancement of nuclear energy
for transforming India, that is Shanti Bill 2025. अब this big legislative change will allow private companies to take part in running and building nuclear power plants. So something that was mostly controlled by state, state-run bodies. Now finally there is the intervention of the private companies, which is a good thing. ठीक है, अच्छी चीज है, देखने को मिली है ये, as this will lead to more development also. ठीक है, so this idea, right? So this idea is that private companies, that is India firms, or जितने भी joint ventures होंगे, they can finally invest, build and cooperate with the nuclear energy facilities under a regulated system. So this could speed up the construction of nuclear plants also, and it could like bring more money and technology also. ठीक है, काम भी मिलेगा, technology भी बढ़ेगी. दूसरा, help India reach its target also. It will help them to reach much higher nuclear capacity in the future, right? At the same time, the law also strengthens safety rules and gives legal status to the regulator that will like cover nuclear safety also, ताकि प्राइवेट ऑपरेशन जो है सेफली और सिक्योरली किए जा सके. ठीक है, तो इसको आसान शब्दों में बात करें तो ये क्या बोल रहा है कि इंडिया यूज्ड टू बी द गवर्नमेंट ओनली ओन ऑफ द न्यूक्लियर पावर, राइट? नाउ विद द शांति बिल प्राइवेट कंपनीज विल बी अलाउड टू ज्वाइन, कि फाइनली प्राइवेट कंपनीज को भी राइट दे दिया गया कि आप भी ज्वाइन कर सकते हो. Now which will help us to speed nuclear power growth. ठीक है, it will help us to manage all the needs and support clean energy goals also. Now I hope this is clear by now. इतनी कहानी सबको समझ में आ गया. अब हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है हमें इसे पढ़ने की? हमें जरूरत है इसे पढ़ने की क्योंकि this is helping us to understand and to link three papers. पहला तो GS पेपर 2, ठीक है, GS पेपर 3 और फिर उसके बाद SC. एथिक्स में भी also you can write the examples. GS पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पे लॉ मेकिंग और प्रोसेस के बारे में बताता है, राइट? एंड इट इज गोइंग टू टेल अस अबाउट द गवर्नमेंट एंड रेगुलेशंस. पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप कब होती है, ठीक है? पब्लिक क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस लगा सकती है, राइट? इन व्हाट कंडीशंस प्राइवेट कैन पार्टिसिपेट, ये सारी चीजें हमें इस न्यूज के थ्रू पता चलेंगी. दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी, न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें हमें यहाँ से पता चलेंगी. उसके बाद ऐसे में यू कैन राइट अबाउट द स्टेट कंट्रोल वर्सेस प्राइवेट पार्टिसिपेशन, ठीक है, एंड एनर्जी ट्रांजिशन और सस्टेनेबिलिटी के बारे में यहाँ पे पता चलेगा. दिस इज व्हाई वी आर रीडिंग दिस न्यूज. आई होप इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं. अब नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि हम इस न्यूज को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दिस कैन अपीयर इन क्वेश्चंस अबाउट एनर्जी पॉलिसी आल्सो, रिफॉर्म्स इन स्ट्रेटजीज सेक्टर्स आल्सो, गवर्नेंस स्ट्रेटजीज में भी आ सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आ सकता है, और इन दोनों को कैसे बैलेंस करके चलते हैं फॉर बेटर ग्रोथ, ये भी आपको हेल्प करेगा इन राइटिंग द एसेज आल्सो, राइट? इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोरिक चेंज देखने को मिला है इन इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी, अ सेक्टर दैट हैज लाइक कंप्लीटली हैड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट फॉर डेकेड्स, राइट? फाइनली इट इज चेंजिंग, राइट? क्या क्या रीजन है इसको चेंज करने के लिए, क्या क्या इम्पैक्ट होंगे इस पर, गवर्नमेंट क्यों कर रही है ऐसे, ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे. अब शांति बिल 2025 एग्जैक्टली है क्या? तो शांति बिल, दिस स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट फॉर न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025, ठीक है? अब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है पार्लियामेंट में 2025. तो इसका एम ये है कि जो कुछ रिफॉर्म्स हैं इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी लॉज में वो लेकर आया जाए, एंड इट शुड बी लाइक ओपन टू द न्यूक्लियर पावर सेक्टर, टू द प्राइवेट कंपनीज, ठीक है? नाउ व्हाई दिस बिल इज हिस्टोरिक, क्योंकि यहाँ पे अगर पुरानी सिचुएशन देखी जाए बिफोर शांति बिल, तो क्या हो रहा था, इंडिपेंडेंस से ही न्यूक्लियर एनर्जी वाज लाइक कंसीडर्ड हाईली सेंसिटिव, ठीक है? इट वाज लिंक्ड टू नेशनल सिक्योरिटी, इट वाज लिंक्ड टू एटॉमिक वेपन, इट वाज लिंक्ड टू रेडिएशन रिस्क आल्सो, ठीक है? इन चीजों की वजह से हमेशा ही हाईली सेंसिटिव माना गया था. So the government agencies, they could work in nuclear energy, ठीक है? So the main law was Atomic Energy Act that came in 1962. Make sure that you are writing this also. पर उसके बाद में क्या हुआ, after the Bhopal gas strategy, this experience and international pressure came up. So Civil Liability for Nuclear Damage Act 2010, right? That was added. So the law that was like private, that was like sacred private and foreign companies due to high accident liabilities. उस इंसिडेंट की वजह से this could be seen. Is it understood? तो इसकी वजह से रिजल्ट क्या हुआ, इसकी वजह से ये रिजल्ट हुआ कि इंडियाज न्यूक्लियर पावर लाइक कैपेसिटी ग्रू वेरी स्लोली, ठीक है?
अब ये बिल चेंज क्या लेकर आ रहा है? सो द शांति बिल रिपीट्स एंड रिप्लेसेस एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, दैट इज सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। तो इसका मतलब ये है कि कंप्लीटली न्यू लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा फॉर न्यूक्लियर एनर्जीज। अब बिगेस्ट चेंज ये है कि यहाँ पर फाइनली प्राइवेट सेक्टर्स का आगमन हो रहा है, राइट। अभी अलाउ क्यों किया गया है कि अंडर शांति बिल देखा जाए, ठीक है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि प्राइवेट इंडियन कंपनीज कैन फाइनली they can build power plants also, they can own them, they can operate them, ठीक है। this can also take part in nuclear fuel fabrications, fuel handlings में भी, और बेसिकली प्लांट मेंटेनेंस में भी हेल्प करेगा। तो पहले जो गवर्नमेंट बॉडीज लाइक एनपीसीआईएल वो कर सकती थी, अब फाइनली शिफ्ट हो रहा है लाइक स्टेट मोनोपोली से हमारी मिक्स पार्टिसिपेशन में, ठीक है। These are the keywords which you have to note down. Please note down. Now, अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसका क्या? तो ये बिल अलाउ करता है फॉरेन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अप टू 49%। अब 49% है, इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट 50-50 पार्टनरशिप ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है, ज्यादा कंट्रोल पब्लिक का ही होगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट फुल प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट कीप्स मेजॉरिटी कंट्रोल। सो दिस हेल्प्स व्हाट ब्रिंग एडवांस टेक्नोलॉजी, अट्रैक्ट कैपिटल, ठीक है, एंड रिड्यूस बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस आल्सो। अब ये what will remain like still remain with the government के साथ रहेगा क्या क्या? So to protect national security और safety, some areas are not open to the private, ठीक है, पूरा हक प्राइवेट कंपनीज को नहीं दिया गया है, राइट। अब जानते हैं इसको कि ऐसा क्यों। तो जितने भी नेशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी को कंसर्न्स है, राइट, उन सबको मद्देनजर रखते हुए द गवर्नमेंट विल स्टिल कंट्रोल हैवी वाटर प्रोडक्शन विल बी कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। जितना भी हाई लेवल न्यूक्लियर वेस्ट होगा वो मैनेज किया जाएगा बाय गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। स्ट्रेटेजिक और न्यूक्लियर मैटर्स जो है वो भी गवर्नमेंट के थ्रू मैनेज किए जाएंगे। वेपन्स रिलेटेड एक्टिविटीज है दैट टू विल बी मैनेज बाय द गवर्नमेंट। सो बेसिकली इंश्योर करेगा कि डेवलपमेंट तो हो, प्राइवेट का पार्टिसिपेशन भी हो, बट जितने भी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो पब्लिक के ही देखे जाए, एटलीस्ट उन पर कोई सवाल ना उठाया जाए। तो ये इंश्योर करेगा सिक्योरिटी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी प्रोटेक्टिव ही रहे, राइट। आई होप इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं न्यूक्लियर सेफ्टी की, जो बहुत ज्यादा मेजर कंसर्न में है। तो क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी हमेशा हाई रिस्क रहता है, सो सेफ्टी जो है बहुत क्रूशियल हमारे लिए। और जब हम शांति बिल की बात करें, दिस बिल गिव्स लीगल स्टेटस टू द न्यूक्लियर रेगुलेटर। तो क्लियरली इट डिफाइंस दैट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, इमरजेंसी हमारे जितने भी इश्यूज है, राइट, एक्सीडेंटल रिस्पॉन्सेज जो है, मैकेनिज्म्स है, लायबिलिटी रूल्स है, राइट, उन सब पर। तो पहले क्या होता था, ये रेगुलेटर्स वर लाइक वेरी अनक्लियर, सो दिस रेज सेफ्टी कंसर्न्स। पर अब बात करते हैं, अब बात करें तो न्यूक्लियर सेफ्टी गवर्नमेंट्स इज लाइक स्ट्रेंथेंड बाय द लॉज, ठीक है। अब गवर्नमेंट ये कर क्यों रही है? एज आई सेड, हम एक एक पार्ट धीरे धीरे समझेंगे। अब ये जानते हैं कि गवर्नमेंट ये चीज कर क्यों रही है। नाउ व्हाई गवर्नमेंट इज डूइंग दिस? बिकॉज इंडिया वांट्स क्लियर एनर्जी, ठीक है, रिलायबल बेस लोड पावर चाहिए, एंड दे कैन नॉट डिपेंड ऑन सोलर एंड विंड, ठीक है, दे आर लाइक इंटरमीडिएट, ठीक है। न्यूक्लियर पावर जो है, दे प्रोड्यूसेस लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी, दे वर्क्स डे एंड नाइट, राइट, एंड हेल्प्स फाइट क्लाइमेट चेंजेस आल्सो, ठीक है। अब बात करते हैं क्लाइमेट कमिटमेंट्स की, which can come in this question also. So you can write the example of this bill, Shanti Bill. अब इंडिया हैज कमिटेड टू नेट जीरो बाय 2070, मतलब वो कार्बन इंटेंसिटी को कम करेंगे एंड इट विल लाइक इंक्रीज नॉन फ्यूज फॉसिल एनर्जी, ये वो टारगेट लेकर चल रहे हैं। एंड दिस टारगेट मेंशन दैट 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047, ये टारगेट उन्होंने दूसरा मेंशन किया है, ठीक है। तो बिना प्राइवेट पार्टिसिपेशन के ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। सो दिस इज व्हाई पब्लिक सेड दैट लेट्स पार्टिसिपेट टुगेदर, लेट्स वर्क टुगेदर फॉर दिस। अब प्राइवेट सेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? तो गवर्नमेंट के रीजंस ये है कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और गवर्नमेंट अकेली जो है ये इस चीज को फंड नहीं कर सकती, इस प्रोजेक्ट को फंड नहीं कर सकती। तो प्राइवेट कंपनीज ने बोला, प्राइवेट कंपनीज को बुलाया गया, राइट, फॉर द एफिशिएंसी, फॉर द टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है। अब कंसर्न और क्रिटिसिज्म क्या है? कुछ एक्सपर्ट जो है वो बेसिकली बोल रहे हैं कि सेफ्टी सेंडर्स और अंडर प्राइवेट बेसिकली ऑपरेटर्स, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। प्रॉफिट और मोटिव वर्सेस पब्लिक सेफ्टी की यहाँ पर बात की गई है। अकाउंटेबिलिटी इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स की बात की गई है कि बेसिकली जिम्मेदारी लेगा कौन, इफ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इन दिस वे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ठीक है। तो ये कंसर्न्स और क्रिटिसिज्म हमारे पास है। अब ये जान लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों है और हमें ये पढ़ना क्यों है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे लिंक जो है हमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स का मिलेगा, ठीक है, कि क्या बेसिकली पार्टिसिपेशन रहेगा, किस परसेंटेज पे रहेगा, क्रिटिसिज्म क्या क्या रहेंगे, कंसर्न्स क्या क्या रहेंगे, और अकाउंटेबिलिटी कौन कौन लेगा, ठीक है। आई होप इस न्यूज से ये सारी चीजें क्लियर है। इज देयर एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क, एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट? इज एवरीथिंग क्लियर फ्रॉम दिस न्यूज? आई होप दैट यू आर राइटिंग ऑल द कीवर्ड्स। Okay, now let's move to another news. 1 in 6 exposed to conflict around the world. Another important news. Okay.
हम सब लोग शांति वाली जिंदगी चाहते हैं, राइट? बट इमेजिन द वर्ल्ड एज अ लाइक विलेज with many homes, right? And in some parts of the village, like life is very peaceful. Children go to school, people work, families eat together, right? They participate, they go to functions together, create festivals, like they do all the things that they like, right? But in other parts of the village, there are like fights, wars are happening, violences are there, chaos is there. So places where people everyday's lives are like interrupted by guns, by bombs, या फिर forced displacement देखने को मिलती है, ठीक है? तो अभी कुछ रिपोर्ट आई है जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ACLED, मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग इट, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? They looked very closely and what they found out that what is happening around the world in terms of armed conflict and political violences is extreme, बहुत ज्यादा हो रहा है. उस पर उन्होंने कुछ नंबर्स दिए हैं, कुछ परसेंटेजेस दिए हैं which you should know. अब this report paints a very serious picture. तो 2025 में about 1 out of every 6 people, 6 में से हर एक आदमी, and it is not a small number, ठीक है? 6 में से हर एक आदमी in the world was exposed to conflict or violence. So that's roughly 831 million people, almost 1/6 of the global population. And exposed to the conflict का यहाँ पे मतलब है कि people live in the area where there has been like active fighting, violence against the civilians is going on, clashes is involving, and armies are there, ठीक है? Armed groups are there, ठीक है? या फिर कोई भी political violence हो रहा है तो वहाँ पे वो लोग included है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि people are like directly fighting, ठीक है? But also it means that families whose lives are disrupted, या फिर because of fear, या फिर बेसिकली फोर्स मूवमेंट देखने को मिली है, डिस्ट्रक्शन ऑफ होम इज सीन, राइट? या फिर जनरल इनसिक्योरिटी हमें देखने को मिली, राइट? अब रिपोर्ट में मिला क्या क्या है कि पहले तो वायलेंट इवेंट्स इंक्लूडिंग आर्म्ड क्लैशेस, अटैक्स, पॉलिटिकल वायलेंसेस, और हमारा जितना भी ये वाइड स्प्रेड हो रहा है अराउंड द वर्ल्ड, राइट? इट कुड बी सीन इन दिस रिपोर्ट. अब civilians are like increasingly caught in this crossfire with many incidents directly targeting non-combatants. अब बात करते हैं स्टेट फोर्सेस की, जैसे कि आर्मीज होगी, गवर्नमेंट होगी, सिक्योरिटी फोर्सेस होगी. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोइंग शेयर ऑफ वायलेंसेस अलोंगसाइड नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स आल्सो, ठीक है? इतनी ज्यादा वर्ल्ड वाइड आल्सो वी आर सीइंग countries fighting with another countries, like ये बहुत ज्यादा देखने को मिला है, as it is like a concerning issues also, इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं. conflict such as the Russia Ukraine, ठीक है? war and violence, ठीक है? और दूसरा जो मेजर रीजन हो सकता है, एंड देन देयर इज अनदर वायलेंस इन द मिडिल ईस्ट आल्सो, अफ्रीका में भी कुछ चल रहा है, लैटिन अमेरिका में भी चल रहा है, एशिया में भी, ठीक है? दे आर लाइक कंट्रीब्यूटिंग हेवीली टू द ओवरऑल एक्सपोजर. तो अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो ये बेसिकली बोलना चाह रहे हैं कि दिस वर्ल्ड इज नॉट जस्ट फेसिंग आइसोलेटेड वॉर्स, इट इज लाइक अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमैनिटी that is like lives in a near violence also, and basically it is like the affecting everything, like from safety and development to migration to the hunger, ठीक है? ये शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब ये मैटर क्यों करता है आप लोगों के लिए, क्यों पढ़ रहे हैं हम इस चीज को? हम इस चीज को पढ़ रहे हैं क्योंकि it talks about international relationships, ठीक है? जो भी हमारे wars हो रहे हैं, again I'm telling you, whenever you're reading some news, make sure that you have the history of it. किस किस कंट्रीज की जो मेजर कंसर्न है, ठीक है? मेजर बेसिकली रोल है इस चीज में, कौन कंट्री प्ले कर रहा है, सबसे ज्यादा लड़ाई कौन कर रहा है, दैट यू शुड नो, राइट? एज इट टेल्स अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस. ह्यूमन राइट्स क्या है हमारे, ठीक है? कंट्रीज आर फाइटिंग, पॉलिटिकल इश्यूज आर देयर, बट देन देयर एग्जिस्ट ह्यूमन राइट्स आल्सो. क्या क्या वायलेट हो रहे हैं यहाँ पे, दैट यू शुड नो विद दिस न्यूज. देन स्टेट का रोल क्या है वायलेंस में, ठीक है? हाउ दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट सिटीजंस फॉर दिस व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन राइट्स. जीएस पेपर 3 में हम बात करें तो इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी की यहाँ पे बात होती है. चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर इज सीन. एथिक्स और ऐसे में बात करें तो सिविलियन प्रोटेक्शंस और मोरल लिमिट्स ऑफ स्टेट पावर की यहाँ पर बात होती है, इसीलिए हम लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं. दिस इज क्लियर? कहानी समझ में आएगी हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज को? अब प्रॉपर डिटेल वे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली आर्टिकल बोलता क्या है. Now why this is important to us? This news tells us that how dangerous the world has become in recent years. कितने सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं. तो ये सबसे पहले तो सबसे 3 चीजें हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज करता है. पहला क्वेश्चन तो ये कि हाउ मेनी पीपल आर अफेक्टेड बाय वायलेंस, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन क्या बताता है, हु इज कॉजिंग मोस्ट वायलेंस टुडे, ठीक है? कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है इस वायलेंस में? हाउ इज मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड वॉर्स, ठीक है? 3 ये सवाल हमारे पास उठकर आते हैं, ठीक है? अब ये ग्लोबली हमारे लिए शॉकिंग क्यों है? तो रिपोर्ट ये कहती है कि 1 in every 6 people in the world lived in a conflict affected area in 2025. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन है हमारी 8 बिलियन, ठीक है? तो 1 in 6 मतलब अबाउट 831 मिलियन पीपल, ठीक है? तो इसका मतलब ये है ऑलमोस्ट 1 बिलियन पीपल, एवरी 6 person you imagine lives with fear, violence, uncertainty
और दिस इज नॉट अ स्मॉल प्रॉब्लम, ये ग्लोबल क्राइसिस है, दिस इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, ठीक है, सिर्फ कंसर्न नहीं है, दिस इज लाइक एन इशू विच शुड बी सोल्व, विच शुड बी रिजॉल्व एट एनी कॉस्ट। अगर नहीं हुआ तो ह्यूमन राइट्स तो छोड़ो, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे लोग, ठीक है, एंड दिस इज अ ह्यूज नंबर, इसीलिए हम लोग इस न्यूज को पढ़ रहे हैं। अब लिविंग इन कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? लिविंग इन कन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि इट्स नॉट दैट एवरीथिंग इज लाइक होल्डिंग एवरीवन इज होल्डिंग अ गन, ठीक है, सब लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं है, या फिर सब लोग वॉर पे जा रहे हैं। इट मीन्स गन फायर हैपेंस नियर बाय, या फिर बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो हुआ है, मिलिट्री पेट्रोल्स आर लाइक कॉमन नाउअडेज, प्रोटेस्ट जो है वो और ज्यादा वायलेंट हो चुकी है, आर्म ग्रुप जो है वो एरिया कंट्रोल कर रहे हैं, पीपल कांट लिव नॉर्मली, ठीक है, जैसे कि स्कूल शट डाउन हो गए, हॉस्पिटल जो है वो खराब कर दिए गए, या फिर हमारी मार्केट जो है वो अनसेफ है, राइट, या फिर नाइट कर्फ्यू लग गया, फोर्स माइग्रेशन कुड बी सीन, ये सारे कंसर्न्स, राइट, दिस कंसर्न आर व्हिच आर टोल्ड इन दिस आर्टिकल। अब ये डाटा कलेक्ट कौन करता है? अनदर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू शुड राइट, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग ईच एंड एवरी डेफिनेशन दैट आई एम टेलिंग यू नाउ। अब ये डेटा कलेक्ट कौन करता है? दिस रिपोर्ट इज बाय ACLED which is Armed Conflict Location and Event Data. Now why ACLD matters to us? So it records every violent events, right? जैसे कि हमारी लोकेशन हो गई, डेट हो गई, बेसिकली हमारे जो भी एक्टर्स इन्वॉल्व है वो हो गए, टाइप्स ऑफ वायलेंसेस, राइट, किस जगह पर हुए हैं, क्यों हुए हैं, राइट, all these are basically given to us by ACLED, ठीक है। अब जो हमारी ACLD की क्रेडिबिलिटी है बेसिकली इंक्रीज होती है यहाँ पे जब यूपीएससी की बात होती है, तो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग इट डाउन, ठीक है। अब वायलेंस इज नॉट डिक्रीजिंग, ये बढ़ता ही जा रहा है। सो रिपोर्ट बेसिकली क्लियरली हमें बता रही है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वायलेंस इवेंट्स रिकॉर्डेड, वायलेंस हैज लाइक नियरली डबल्ड कंपेयर टू रीसेंट ईयर्स, डबल ही हो रहा है, ठीक है, कम नहीं हो रहा है कुछ भी, एंड कन्फ्लिक्ट्स आर स्प्रेडिंग, लास्टिंग लोंगर, देन बिकम्स मोर एंड मोर वायलेंट टू अस, ठीक है। अब ये चैलेंज करता है एक आइडिया हमारे पास, जो आइडिया है मॉडर्न सिविलाइजेशन रिड्यूसेस वायलेंस, बट रियलिटी तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट ही है। अब ये बहुत ज्यादा डेंजरस है फाइंडिंग, क्योंकि these like states are the major violent actor when it comes to these crises, and this is the most important analytical point that you should know. About 70%, 75% of violent events involved state forces. तो जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट हमारे लिए प्रोटेक्ट करने के लिए बनाती है, वही रीजन है हमारे इतने वायलेंसेस का, इतनी क्राइसिस का। सो स्टेट फोर्सेस इंक्लूड व्हाट? आर्मीज, पुलिस, पार्लियामेंट्री, गवर्नमेंट बैक मिलिटेंट्स, ठीक है, ये सारी चीजें। तो पहले क्या माना जाता था? पहले ये माना जाता था कि जो भी वायलेंसेस है दे कम्स फ्रॉम टेररिस्ट या फिर हमारे रेबल्स से, बट एक नई रियलिटी पता चली है कि गवर्नमेंट देमसेल्व्स आर डीपली इन्वॉल्व। Now this raises very serious questions. Again, I'm telling you, every news that you are hearing is debatable. So you can have different viewpoints also. But what this article is saying, that's what I'm telling you. Now, बहुत सीरियस क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ये बेसिकली सिटीजन के राइट प्रोटेक्ट करता कौन है? अगर स्टेट ही ये सारे क्राइसिस फैला रही है, then where do human rights stand? Is force being used responsibly, right? So these kinds of questions are come up with this article. तो अगर हम देखा जाए तो सिविलियंस आर द मेन विक्टिम्स टुडे। मॉडर्न कन्फ्लिक्ट्स आर नॉट सोल्जर्स वर्सेस सोल्जर्स, बट आज के टाइम पे बॉम्ब्स फॉल्स ऑन होम्स, सिटीज बिकम्स बैटलफील्ड्स, राइट, एंड सिविल्स आर लाइक डायरेक्टली अटैक्ड। बेसिकली प्रोटेस्ट जो है हमारी क्रश कर दी जाती है वायलेंटली, वी आर नॉट एबल टू प्रेजेंट आवर राइट्स व्हिच आर गिवन बाय द स्टेट। देन अगेन दिस रिपोर्ट हाइलाइट्स कि जो भी हमारे रिस्क है, ठीक है, दैट इज लाइक हैपनिंग अ लॉट ऑन सिविलियंस, ऑन चिल्ड्रंस, ऑन वुमेन, एल्डरली अफेक्टेड मोस्ट, ठीक है, और रिफ्यूजीज जो बेसिकली जहाँ की क्राइसिस और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, इसीलिए these refugees are increases, humanitarian और एड जो डिमांड है वो ज्यादा राइज हो रहा है, इंटरनेशनल लॉ है वो जो स्ट्रगल हो रहा है, राइट। नाउ वेयर आर दीज कन्फ्लिक्ट्स हैपनिंग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रीजन्स की, एज आई टोल्ड यू आल्सो कि आपके पास जब भी इस न्यूज को पढ़ो, आपके पास रीजन्स होने चाहिए कि कहाँ कहाँ से ये चीज उठ कर आ रही है। यूरोप की बात करते हैं, यूक्रेन वॉर, ठीक है, फुल स्केल स्टेट टू स्टेट वॉर हमें देखने को मिला, मिसाइल्स थी, टैंक्स थी, ड्रोन्स थे, मासिव सिविलियन सफरिंग वाज देयर, राइट। फिर उसके बाद बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, गाजा का कॉन्फ्लिक्ट सबको पता है ठीक है, इसराइल और पैलेस्टीन, ठीक है, सीरिया, ये सारी हमारे पास जो है दीज आर लाइक लॉन्ग रनिंग वॉर्स, ठीक है। अफ्रीका की बात करते हैं, सिविल वॉर्स, मिलिट्री कूप्स जो है हमें देखने को मिलती है, ठीक है, एथिक्स कॉन्फ्लिक्ट और टेररिज्म हमें देखने को मिलता है जैसे कि साहेल रीजन्स में भी, राइट। देन लैटिन अमेरिका, राइट, लैटिन अमेरिका में हमारे पास ड्रग कार्टल्स, गैंग वॉर्स, अर्बन वायलेंसेस, वीक स्टेट कंट्रोल, ये तो हमें देखने को मिलता ही है इन लैटिन अमेरिका, राइट। अब हाउ हैज द लाइक नेचर ऑफ द वॉर हैज लाइक चेंज्ड, तो हम इसकी बात करते हैं। दिस वाज लाइक अ वेरी कंसेप्चुअल वॉर फॉर लाइक पॉइंट फॉर ऐसे। तो पुराने वॉर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे होता था कि दो आर्मीज है, ठीक है, क्लियर बैटलफील्ड है, सोल्जर्स जो है एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं।
बट नया कन्फ्लिक्ट ये होता है कि बहुत सारे एक्टर्स है, स्टेट भी है यहाँ पे, मिलिटेंट्स भी है, टेररिस्ट भी है, आपके नए वेपन्स भी है, ड्रोन्स भी है, साइबर अटैक्स भी है, सर्विलेंस भी है, राइट। और ना यहाँ पे कोई क्लियर बैटलफील्ड है, ना ही यहाँ पे कोई बेसिकली सिविलियन है मिडिल में जो यहाँ पे बता सके एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इट्स लाइक ईच एंड एवरी वन ऑफ इज फाइटिंग, खिचड़ी बना दी गई है पूरी, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड वॉरफेयर। Another keyword that you have to find. Okay, I hope इतना आपको समझ में आ गई होगी सारी चीजें. Is there anything that you want me to repeat? ओके अब ये न्यूज हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ कि जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्लोबल इंस्टेबिलिटी की बात करता है, स्टेट वायलेंसेस की बात करता है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लोन्स की बात करता है, राइट। देन इट टॉक्स अबाउट जीएस पेपर 3 आल्सो, राइट। इंटरनेशनल और एक्सट्रीम सिक्योरिटी के बारे में, चेंजिंग वॉरफेयर के बारे में बात करता है, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स के बारे में बात करता है। देन इट टॉक्स अबाउट जीएस पेपर 4 आल्सो, राइट। स्टेट वर्सेस मोरालिटी के बारे में, प्रोडक्शन ऑफ सिविलियंस के बारे में, रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में, अगर स्टेट ही इन्वॉल्व है इस चीज में तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर राइट्स, ठीक है, हु इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अस। ऐसे में हमारे पास बेसिकली इट इज giving us a quotation कि human security in modern conflicts, how is it, right? What are the measures that we can take? Is the world becoming more violent? So these things you can write in the essay. I hope this news is clear to you. Do you want me to repeat anything? Okay. So with this, let's move to another news. Massacre in Sydney on the Bondi Beach shootings, hate crimes. Very important for essay especially. Okay. अब imagine करो a peaceful celebration. It's the first evening of Hanukkah, a Jewish festival of lights. ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे क्रिसमस होता है, दिवाली होता है. So for Jewish, this is like Hanukkah, a very big festival for them. Right? So a time of joy is there. Families gatherings are happening. Music and hope is there. So in Sydney, Australia, hundreds of people had like come together near Bondi Beach for this beautiful and famous seaside sport for this festival only, to celebrate this festival and to spend time with the family and community. ठीक है, अब सडनली क्या हुआ, द सेलिब्रेशन टर्न इनटू अ नाइटमेयर. दो आदमी दे ओपनड अ फायर ऑन द क्राउड विद द गन्स, शूटिंग पीपल इनडिस्क्रिमिनेटली. ठीक है, बिना कुछ देखे, बिना कुछ भी करे, ठीक है, दे स्टार्टेड शूटिंग देम. ठीक है, नाउ द अटैक वाज लाइक डेडली एंड इट वाज वेरी शॉकिंग. Many people ran screaming. Some hid where they could. Right? In the chaos, one brave bystander even tackled one of the gunmen, but tried to stop the violence. But he was like hit, and he was like shot dead. By the end of the attack, what happened that at least 15 to 16 people were killed, including children, elderly people, and dozens were injured, and some are like still critical. So both attackers were identified as father and his grown son. So one was killed by police, the other was taken into custody, badly injured. Now attack was not random. It was directed by the Jewish community celebrating that festival, make it an example of hate crime, motivated by, which is another word. Um, so Hanukkah is basically a festival which is basically, yes, so it's a festival which is for the Jewish people, like we celebrate Diwali, right? And Christians celebrate this Christmas, right? So same is for those Hanukkah people, Jewish people. So this is kind of a festival. I hope it is clear. Now, this attack was not random to us, right? It was motivated by one thing which is called anti-Semitism, that is like hatred or prejudice, okay, against Jewish people. Now it also appears that extremist ideology also that is linked to the group, that is played in the role, basically role in the motivating the gunmen also. Now people around Australians and the world were like horrified, बहुत डरे हुए, ठीक है. So leaders strongly condemned the violence, calling for unity and the strongly, securely and protecting for all the religious and basically minorities people, minorities communities. So many held like vigils and movements for the silence to honor the victims. Now in a country known for strict gun laws and relative safety, this was one of the deadliest attack in decades. A movement that not only shocked just Sydney, but people everywhere who believed in tolerance, who believed in peaceful coexistence. ठीक है, तो वहां पे अटैक देखने को मिला है. अब हम बात करते हैं कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं. We are reading this because this is coming in GS paper 2 as it talks about protection of minorities, about Jewish. ठीक है, you can, whenever the word minorities come, you can write this incident as an example, right, about the Jewish communities, human rights and religious freedom as people were killed, right, and international responses to the terrorism.
that people around the world, leaders around the world, they condemned this act, right? And how they did it. So you can write the names of the leaders also if you have tried the examples. Now GS paper 3 terrorism, international security, ideological extremes के बारे में बात करती है, communal harmony के यहाँ पे बारे में बात होती है, tolerance के यहाँ पे बारे में होती है, moral responsibilities के बारे में यहाँ पर बात होती है. I hope this is clear that why we are reading this news. Now अब एग्जैक्टली एक एक पॉइंट करके समझते हैं कि हुआ क्या. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो 14 दिसंबर 2025 a tragic and shocking incident took place at Bondi Beach in Sydney. ठीक है, so this Bondi Beach, it is very famous when it comes to tourist place. ठीक है, it is known for peace, very openness और बहुत ही multicultural gatherings यहाँ पे होती रहती है. ठीक है, so people were gathered there क्योंकि यहाँ पे Jewish जो है अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, that was known as Hanukkah celebration, right? So it is like a Hanukkah is like a Jewish religious festival that is celebrated peacefully with prayers, lights, कम्युनिटी गैदरिंग. जितना हमारे लिए क्लोज दिवाली है उतना ही क्लोज उनके लिए हनुका फेस्टिवल है, राइट? बट सडनली दिस पीसफुल सेलिब्रेशन टर्न इनटू हॉरर. ठीक है, अब नेचर क्या था इस अटैक का? द टू आर्म्ड मेन दे ओपनड द फायर इन द क्राउड एंड पीपल वर अनआर्म्ड सिविलियंस, फैमिलीज वर देयर, चिल्ड्रंस वर देयर, दे डिडंट सी दैट हु इज इन फ्रंट ऑफ देम, दे जस्ट ओपनड द फायर एंड एल्डरली पीपल वर आल्सो प्रेजेंट देयर एंड दे वर आल्सो किल्ड. ठीक है, नाउ ये दिखाता है कि वायलेंस कैन हैपन एनीवेयर, इवन एट रिलीजियस और कल्चरल इवेंट्स पर. ठीक है, और इसके तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है. व्हेन इट कम्स टू इंडिया आल्सो वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ दिस. इवन इन कंट्री वेयर वी लिव, वी आर लाइक नोन फॉर सेफ्टी. यहाँ पे जब भी ऑस्ट्रेलिया में बात करते हैं ना तो इन चीजों के लिए ऑस्ट्रेलिया इज वेरी फेमस, स्पेशली फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स. लेकिन अगर वहां पर भी हो सकता है और स्पेशली एट अ प्लेस, एट अ पब्लिक प्लेस वेयर सच गैदरिंग इज देयर, राइट? तो इट इज अ कंसर्न, ये ग्लोबल कंसर्न है, राइट? अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे ह्यूमन कॉस्ट, अनदर कीवर्ड दैट यू कैन राइट डाउन. तो 15-16 पीपल वर किल्ड एंड डजन्स वर इंजर्ड. तो बहुत सारे विक्टिम्स जो थे, दे वर लाइक ऑर्डिनरी पीपल अटेंडिंग अ फेस्टिवल. एंड दिस वाज नॉट जस्ट अ नंबर, सिर्फ नंबर नहीं है. इसका मतलब क्या है कि लाइव्स लॉस्ट, फैमिली इज डिस्ट्रॉयड, अ कम्युनिटी, ठीक है, दैट इज लाइक ट्रॉमेटाइज्ड बिकॉज ऑफ दिस. अब आप देखा जाए तो दे वर लाइक सेलिब्रेटिंग दैट फेस्टिवल, राइट? सो दिस इज लाइक टारगेटिंग समथिंग, राइट? दे वर टारगेटिंग देयर कल्चर, राइट? दे वांटेड टू डिमिनिमाइज दैट, राइट? अब अटैकर्स कौन कौन थे? अटैकर्स की बात करते हैं तो these attackers were father and son. So one attacker was killed by the police on the spot and other was critically injured and arrested. Now ये matter करता है as it shows about radicalization also, that it can happen inside families also, as it was involving father and son, right? Now extremist ideas जो है यहाँ पे पास हो सकते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ. टेररिज्म हमेशा फॉरेन नहीं होता है, it can be homegrown as well, right? This is what this incident tells to us. So authorities stated that attacker was basically an anti-Semitic, that is hate crime. इसका मतलब ये है कि अटैक जो हुआ था that was like targeted against Jews. तो victims जो थे they were attacked because of their religions. Links were also found to the extremist ideologies also, Islamic ideologies also. So this makes it that not just a crime but an act of terrorism and an act of hate. ठीक है, अब ये टेरर एक्ट क्यों बोला गया है? गवर्नमेंट एक्शन दैट विल आल्सो डिस्कस, प्लीज एक एक करके चीजें डिस्कस करेंगे. अब पहले जान लेते हैं कि गवर्नमेंट टेरर अटैक होता क्या है. तो टेरर अटैक की बात करते हैं तो बेसिकली दिस इज लाइक यूजुअली हैज द आइडियोलॉजी जैसे हेट्रेड और एक्सट्रीमिस्ट. ठीक है, टारगेटिंग ऑफ सिविलियंस, इंटेंशंस टू क्रिएट फियर. तो इस अटैक की बात करें तो इट वाज लाइक टारगेटेड ऑन रिलीजियस ग्रुप आल्सो. ठीक है, स्प्रेड फियर बियॉन्ड द इवेंट. ठीक है, सिर्फ इवेंट पे टारगेट करना नहीं था, they wanted to put an impact on that basically community, on that festival, क्योंकि उनके लिए वो फेस्टिवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दिस शॉक्स द एंटायर नेशन. देयरफॉर इट इज द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म प्लस हेट क्राइम. अब ये इंसिडेंट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए. क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है हमेशा स्ट्रिक्ट गन्स कंट्रोल लॉज के लिए जानी जाती है. यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट गन्स लॉज है. यहाँ पे इजीली आप एक्सेस नहीं कर सकते हो कोई भी फायर आर्म्स. यहाँ पे इजीली एक्सेस नहीं कर सकते आप कोई भी लोअर गन. ठीक है, सो दीज वायलेंस कंपेयर टू मेनी कंट्रीज दैट कुड बी सीन, ऑस्ट्रेलिया में हमेशा कम मिलते हैं. बट अगर यहाँ पे हुआ है सो दिस टेल्स की हेट्रेड कितना ज्यादा था एंड व्हाट काइंड ऑफ मेजर्स दोस टेररिस्ट टू, राइट? सो अ मेजर टेरर अटैक स्टिल हैपन. सो दिस रेज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू अस. कैन गन लॉज अलोन स्टॉप टेररिज्म? Is ideological extremist is the bigger danger? How do like societies detect these radicalism early? ठीक है, तो जो सवाल आप पूछ रही है शकीरा, राइट, सॉरी शाइका, राइट, सो सी सेम क्वेश्चंस आर बीन आस्क्ड इन द आर्टिकल. ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे रेज होते हैं यहाँ पर, राइट? अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री क्या है, राइट? एंड दिस इंसिडेंट स्टिल हैपेंड. सो नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस इट रेजेस. तो जब भी हम बात करते हैं गवर्नमेंट और सोसाइटी के रिस्पॉन्सेस की,
तो आपका ही जो आंसर है यहाँ पे प्लीज सुन लीजिए। तो अटैक के बाद, ठीक है, देयर इज लाइक स्ट्रॉन्ग कंडेम्ड विद ऑस्ट्रेलिया लीडर्स केम राइट एंड कॉल फॉर यूनिटी एंड कामनेस वाज आल्सो कॉल्ड, कि थोड़ा सा आप जो भी है मिस इन्फॉर्मेशन ना स्प्रेड करें या फिर कोई भी हेट्रेड है वो स्प्रेड ना करें, राइट। नाउ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वाज आल्सो प्रॉमिस्ड, ठीक है। सो जहाँ पे भी कोई रिलीजियस गैदरिंग होगी, कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज होगी, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जाएंगी, और इंडिया में भी ऐसा होता है, राइट। और दीज आर द मेजर्स दैट गवर्नमेंट कैन टेक। नाउ ये हमें रिस्पॉन्स ये दिखाता है कि दिस स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज आल्सो, देयर आर सम स्टेंसेस दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल हार्मनी इज आल्सो सीन देयर, इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज आल्सो सीन देयर, दैट इज लाइक स्टैंडिंग अगेंस्ट द हेट, ठीक है। तो ये सारी चीजें रोल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट इज सीन देयर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन ले सकती है। तो हमें इससे ये समझ में आता है, इस न्यूज से ये समझ में आता है कि दिस हेट क्राइम्स आर लाइक इंक्रीजिंग ग्लोबली, ठीक है। रिलीजियस आइडेंटिटीज आर लाइक बिकमिंग टारगेट्स बिकॉज ऑफ दिस। डेमोक्रेसीज दीज लाइक मस्ट प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। जब भी माइनॉरिटीज की बात होती है, देयर शुड बी सम एक्शन दैट गवर्नमेंट शुड स्टार्ट टेकिंग, ठीक है। उनके बेसिस पे दे शुड स्टार्ट टेकिंग मेजर्स, बट देन अगेन द क्वेश्चन कम्स अप कि स्टेट कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी इफ सिटीजंस आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड दैट वी शुड लिव टुगेदर, वी शुड बी यूनाइटेड, ठीक है। So these are the questions that comes up with, and I hope this is clear. So with this, let's move to another news and important news. So make sure that you are writing all the keywords that I'm telling you. Okay. President rejects mercy plea of men convicted of rape, murder of 2-year-old. Okay. अब एक बहुत ही ज्यादा और tragic crime that happened many years ago in Maharashtra. So a man named Ravi Ashok Kumare did something very horrific, right? He basically lured a 2-year-old girl with chocolate and kidnapped her, sexually assaulted her, and then killed her. So this crime happened in 2012 and shocked the whole society because it involved what? It involved extreme violence against a very young girl. So this case went through many years of court battles. ठीक है, बहुत साल तक कोर्ट में बैटल चलता रहा, ठीक है। नाउ दिस रेज द क्वेश्चंस अगेन, इतने सारे बैटल्स अब अगर इकट्ठा करके चलोगे तो जो नए नए केसेस आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। बट देन अगेन एंड फॉर दिस आई हैव लाइक डिस्कस्ड वन न्यूज आल्सो, कुछ ही दिन पहले आई थी, आई होप दैट यू हैव रेड इट। ओके, तो पहले अ ट्रायल कोर्ट फाउंड हिम गिल्टी, ठीक है, ऑफ किडनैपिंग, रेप, अननेचुरल ऑफेंसेस आल्सो, और मर्डर के लिए भी। एंड देन व्हाट द ट्रायल कोर्ट डिड, उन्होंने उसको सेंटेंस सुना दिया फॉर द डेथ। नाउ द जज सेड दैट दिस एक्ट वाज लाइक बियॉन्ड व्हाट एनी पर्सन शुड डू। तो मुंबई हाई कोर्ट ने भी बेसिकली, और सुप्रीम कोर्ट ने भी, तो पहले लोअर कोर्ट ने, फिर मुंबई हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने, तीनों ने ही इन्हें बोल दिया दैट दिस पर्सन शुड बी अपहेल्ड दैट, ठीक है। और इसमें कोई बेसिकली क्वेश्चन रेज नहीं होना चाहिए, राइट। इवन आफ्टर ऑल कोर्ट सेड दैट ही मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, बट स्टिल दैट पर्सन, that criminal had one last legal option and he could file a mercy petition to the president of India, ठीक है। चौथा ऑप्शन उनके पास था कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाए, राइट, अंडर आर्टिकल 72, वी शुड रिमेंबर, जो कि प्रेसिडेंट के पास होता है, right? So in India's legal system, the president has the constitutional power, that is Article 72, right? To grant mercy, reduce a sentence, or pardon someone on the death row. So this is the final step, ठीक है। After all the courts are done, ये सबसे final step होता है कि वो president के पास जाए और अपनी mercy plea करे, ठीक है। If president allows, ठीक है, तो ये फाइनल स्टेप होता है उनके पास। नाउ इफ द प्रेसिडेंट अलाउज, ठीक है, तो वहां पे मर्सी ग्रांट की जाती है, ठीक है। नाउ दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट। तो बट ऑन द नवंबर 6 2025 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिजेक्ट्स दिस मर्सी, ठीक है। अब इसका मतलब ये होगा कि प्रेसिडेंट ने मना कर दिया है टू पार्डन हिम और रिड्यूस हिज सेंटेंस। So because of this, his death sentence will now be, carried out according to the law, right? So this was the President Murmu's third mercy petition, that is rejection during her presidency. तीसरी हमारे पास ये मर्सी पिटीशन है जो प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट की है उन्हीं के प्रेसिडेंसी रूल में, ठीक है। अब ये मैटर क्यों करता है? ये मैटर करता है बिकॉज दिस टेल्स अस अबाउट GS2 कि हमारे पास प्रेसिडेंट का रोल क्या क्या है, ठीक है। आर्टिकल 72 के बारे में बताता है, ठीक है, कि बेसिकली प्रेसिडेंट हैव द राइट कि अगर कोई डेथ रो आ रही है तो दे हैव द राइट कि तो सेंटेंस को रोक दिया जाए या फिर उसको कम कर दिया जाए, राइट। देन जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में बताता है, ठीक है, कि कैसे कैसे देयर इज लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और फिर उसके बाद देयर इज अ प्रेसिडेंट, राइट, और कैसे हमारे पास यहाँ पे पावर जो है डिवाइडेड है, राइट। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पावर इज लाइक देयर इज सम सिचुएशन जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अलावा भी चलती है, वेयर यू कैन टेक डिसीजन पर्सनली आल्सो, राइट। नाउ GS4 में इट टॉक्स अबाउट एथिक्स, डेथ पेनल्टीज, डिबेट, जस्टिस वर्सेस ह्यूमन राइट्स, और हमारे डिटरेंस के बारे में ये बात करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। अब
थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली बात क्या है, कहानी क्या है. So the accused was Ravi Ashok Kumare and he was charged with kidnapping, rape, unnatural offense और हमारे murder के लिए. So these are among the most very serious crimes under the Indian criminal law. तो बेसिकली बात करें तो देयर इज लाइक अ जर्नी दैट हैपेंड. So this case passed through all the levels of Indian judiciary, ठीक है, which is very very important for the UPSC. So make sure you are writing it. तो पहले तो ट्रायल कोर्ट आया हमारे पास, that happened in 2015. 2015 में हमारे पास आया ट्रायल कोर्ट. So this trial court examined evidences, witnesses उन्होंने देखे, medical reports उन्होंने देखी, and it found that accused guilt beyond the doubt. ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है इस चीज में. With looking all the evidences, they found this man to be guilty. Considering the brutality of the crime, the court awarded the death penalty. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ट्राई कोर्ट की कहानी खत्म होगी 2015 में. नाउ फिर उसके बाद 2016 में आता है हमारे पास मुंबई हाई कोर्ट. नाउ मुंबई हाई कोर्ट का ये है, दिस एक्यूज्ड अपील्ड लाइक अगेंस्ट द डेथ सेंटेंस. सो द हाई कोर्ट रिव्यूड द केस, इट कंफर्म्ड कि हाँ डेथ पेनल्टी तो ठीक दी हुई है, एंड अग्रीइंग विद द ट्रायल कोर्ट दे सेड कि हाई कोर्ट एक्ट एज लाइक अ चेक ऑन लोअर कोर्ट्स. ठीक है, सबको पता होगा कि दे आर लाइक द चेक ऑन द लोअर कोर्ट्स. ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ट्रायल कोर्ट ने जो भी सेंटेंस सुनाया दैट्स परफेक्टली फाइन. तो उसके हिसाब से बेसिकली उनको डेथ पेनल्टी दे दी गई. ठीक है, तो पहले पास हमारे पास है ट्रायल कोर्ट, दूसरा हमारे पास आया बॉम्बे हाई कोर्ट. ठीक है, तीसरा हमारे पास आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दैट केम इन 2019. तो दिस केस फाइनली रीच्ड द सुप्रीम कोर्ट. A 3-judge bench heard of the matter and the verdict was 2:1. ठीक है, मेजोरिटी डिसीजन में बेसिकली हमारा ये पास हुआ और उसके बाद यही डिसाइड किया गया कि क्योंकि ये क्राइम बहुत ज्यादा ब्रूटल था, राइट, एंड इट क्रॉस सोशल और लीगल एलिमेंट्स आल्सो, तो इट फेल अंडर द रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी. ठीक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी यही डिसाइड किया कि जो भी सजा सुनाई गई है दैट डेथ सेंटेंस शुड बी अपहेल्ड, राइट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर डेथ पेनल्टी जुरिसडिक्शन आल्सो. ठीक है, अब बात करते हैं कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्यों है. नाउ इंडिया कोर्ट्स डू नॉट गिव डेथ पेनल्टी इजीली, ये बात हम सबको पता है. ठीक है, डेथ पेनल्टी इज अवॉर्डेड ओनली व्हेन द क्राइम इज एक्सट्रीमली ब्रूटल. ठीक है, सोसाइटी बेसिकली सोसाइटीज कंसाइंस इज एट स्टेक. ठीक है, जब वो ज्यादा शॉक में हो जाता है ओनली देन दिस डेथ सेंटेंस इज गिवन. Life imprisonment is seen as inadequate, right? So this principle was laid down in basically Bachchan's case also that happened in 1980. अब mercy petition क्या है? Even after all the courts basically confirmed death penalty, one last constitutional option was remained. That is mercy petition. That was filed under Article 72 of the Constitution. That was submitted to the President of India. Now the President can like basically pardon या फिर वो कमिट कर सकती है या फिर वो रिड्यूस कर सकती है सेंटेंस को, एंड दिस इज लाइक पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर, नॉट जुडिशियरी, राइट. अब प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है आर्टिकल 72 में? इन दिस केस द अक्यूज्ड फाइल्ड अ मर्सी पिटीशन टू द प्रेसिडेंट. ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एग्जामिन्ड द पिटीशन और आफ्टर कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, लीगल एडवाइजर्स के साथ और केस रिकॉर्ड्स के साथ उन्होंने कुछ डिसाइड करा. उन्होंने बोला कि मैं ये जो पिटीशन है दैट ऑन नवंबर 6, 2025 शी रिजेक्टेड द मर्सी पिटीशन. ठीक है, और ये इनकी थर्ड पिटीशन है, थर्ड रिजेक्शन है बिकमिंग द प्रेसिडेंट इन 2022, राइट. नाउ दिस रिजेक्शन मीन डेथ सेंटेंस स्टैंड कंफर्म्ड. ठीक है, अब इसके आगे उनके पास कोई भी रास्ता बेसिकली नहीं है, राइट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर, सो दिस सेपरेशन ऑफ पावर व्हिच कुड बी सीन, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है दैट वर्क सेपरेटली बट दे वर्क टुगेदर. ठीक है, पहला जुडिशरी की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है ट्रायल कोर्ट, हायर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दैट डिसाइड्स गिल्ट एंड पनिशमेंट. फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव है हमारे पास जो है प्रेसिडेंट बेसिकली डिसाइड्स मर्सी, राइट. लेजिस्लेचर की बात करें तो क्रिमिनल लॉज अंडर व्हिच पनिशमेंट इज गिवन टू अस. सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल्स फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस आल्सो. ठीक है, नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट द न्यूज़ इज अबाउट. अब एक सवाल मैं आपसे छोड़ के जा रही हूँ. टेल मी दैट इज डेथ पेनल्टी नेसेसरी, एज देयर आर लॉट्स ऑफ फिलोसोफर्स हु बिलीव दैट डेथ पेनल्टी जो है कभी भी हमें बेसिकली कुछ इट डजंट गिव गुड टू द सोसाइटी, राइट. सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंकर्स हु बिलीव कि डेथ पेनल्टी से अच्छा है कि आप लाइफ इम्प्रिजमेंट दे दो सो दैट द पर्सन कैन बी बेटर, सो दैट ही कैन लाइक लर्न फ्रॉम समथिंग, राइट, फ्रॉम हिज मिस्टेक, राइट. So do tell me that do you think the same? That you have to write down in the comment section, right. Now let's move to another PYQs related to the news that we have learned. Okay, so please tell me, and for this I want each and everyone's answer. The question is with reference to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, consider the following statements. It provides a legal guarantee for at least 100 days of employment in every day financial year
to adult member of any rural household willing to do unskilled manual work. या फिर 2, under the act, if employment is not provided with 15 days of application, the application is entitled to unemployment allowances. 3, the work under MGNREGA is permitted only for unskilled manual labor. So which of the statement is given above are correct? चलो बताओ, which one is correct? Waiting for the answers. Okay, why A? Why the answer is A correct? Okay, yes, the answer is A. That is 1 and A only. So basically statement A इसलिए correct है क्योंकि it is like the MGNREGA is right based law. Okay, very good Shantanu. So as it carries 100 days of wage employment in a financial year to adult members of rural households also. ठीक है. Statement 2 is also correct. Statement 3 is incorrect. The word only makes the statement wrong, right? Because MGNREGA जो है basically focus करता है unskilled manual work पे. But the act does not only restrict work only, but to that basically in the absolute terms also. So yes, the correct option is 1. Okay. Please read the question as this is your homework and I want answers in the comment section. Yes, answer is A. Perfect. So with this, we'll end today's current affairs and I'll see you tomorrow at the same time in the same class. Thank you.